Hello friends, welcome to Sri Tulsa Bohani College of Engineering, Tulsapur, Quantitative Aptitude Batch 2020. Today we are going to start our lecture 2 of module number 2, that is time, speed and distance. And the title for the lecture 2 is Problems on Trains Type 1. As we have already discussed, there are 6 types of the problems on train, and today we are going to take the type 1 of the problems on train, and this is easy one, can be completed within time. Okay, and also we are going to take the overview of type 2 also. So first of all, I would like to say, please, if you haven't subscribed to the TCA, please do subscribe to our channel and please do like and share among your friends. So we will study the today's topic now. Type 1, train crossing a man or a pole on platform. यहाँ पर today's communication will be the combination of English as well as Hindi, because there is a demand from the northern state also to take the sessions in Hindi. So I will try to mix up Hindi as well as English. Okay, so today हम क्या करने वाले हैं, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन और पोल ऑन द प्लेटफॉर्म, ये हमें यहाँ पर निकलना है. तो ट्रेन क्या कर रही है, स्पीड में, ट्रेन इन स्पीड एंड मैन और पोल इज स्टेशनरी. आप अगर विजुअलाइज करके देख सकते हो, नीचे एक डायग्राम दी गई है, ये है 1 नंबर वाली डायग्राम, ये दूसरी वाली, क्योंकि ये जो डायग्राम से बहुत ही इजी है समझने में. आप देख सकते हैं इधर ये वाली फर्स्ट वाली डायग्राम, ये वाली सेकंड वाली है. उसमें क्या बताया गया है, टाइप 1 में क्या प्रॉब्लम होता है, ट्रेन आती है, वहां से प्लेटफॉर्म पर मैन खड़ा रहता है या फिर पोल खड़ा रहता है. तो ट्रेन यहाँ पर स्पीड में से आती है, वो वहां पर जो मैन खड़ा रहता है उसको क्रॉस करके जाती है. वही सिनेरियो सिर्फ ध्यान में रखना है. और सिमिलरली व्हेन मैन नहीं होता है तो पोल रहता है. लेकिन पहली सिचुएशन में ट्रेन स्पीड में है, लेकिन मैन और पोल दोनों में जो भी प्रॉब्लम है वो स्टेशनरी रहता है. ओके, बिकॉज आइदर अ मैन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन और द ट्रेन इज अ स्पीड. सपोज इन अ सर्टन सिनेरियो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम दैट द speed of the train is 0, that is train will be stationary and man will be walking. Okay, we will take the problem on this scenario also in the upcoming lecture or in the upcoming procedure of this lecture. So what is the formula for the speed? This is the chapter main of the speed, time and distance. Speed, time and distance. As we have already studied, the entire chapter of the speed, time and distance is based on the only one formula, that is speed is equal to distance upon time. If you understand these 3 concepts carefully, you can easily solve any of the problem that has been asked in the chapter. Okay, because you have to put these values in the speed, time and distance categories, and then you can solve easily as. Okay, so speed is the formula, and formula for the speed is the distance upon time, and the unit for the speed is either kilometer per hour or meter per second, is standard international SI units. Now for the distance, unit is kilometer or meter. For in general, I am talking in general, it might be in centimeter, millimeter, but in the problems of the quantitative aptitude, it is either in the kilometer or meter, and for the time it is minute or second, but most of the time it is asked in the hours and second. Now visualize the situation. यहाँ पर जो भी कंडीशन है उसको विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए. मैन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन वहां पर से स्पीड में आ रही है. तो प्रॉब्लम कैसा पूछा जाता है, ये 3 क्वांटिटीज है, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है. उसमें से एक क्वांटिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है. 3 में से दो क्वांटिटी हमें दी होती है, और सिर्फ यहाँ पर 2 क्वांटिटी पुट करके थर्ड क्वांटिटी निकालनी नहीं है, क्योंकि उनका यूनिट चेक करना है. अगर स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो यहाँ पर ऊपर वाली क्वांटिटी अगर किलोमीटर पर आवर में है और नीचे वाली क्वांटिटी मिनट में, तो हमें या तो उसको ऊपर वाली क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी किलोमीटर है, या फिर नीचे वाली को किलोमीटर में करना है. ओके, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग टर्म्स वाले एक इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए. यूनिट, क्योंकि 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, इसको यूनिट में सिमिलर यूनिट्स करने चाहिए. इसलिए यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रेन. यूनिट कन्वर्जन जिसको अच्छे से जम गया, उस चैप्टर में ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस में आउट मार्क्स ले सकता है. ओके, तो चलिए आपने विजुअलाइज किया. सपोज यहाँ पर पोल भी है. हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं सिर्फ एल डिस्टेंस को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है. यहाँ पर वी एल, यहाँ पर क्या दिया होता है, ट्रेन इज अ क्रॉसिंग द मैन.
तो टाइम दिया जाता है कितने टाइम में ट्रेन मैन को क्रॉस करती है। ओके, और हमें पता बताया गया होता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑल्सो गिवन। सपोज स्पीड इज u किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज in second, and we have to find the distance which is traveled by the train while crossing the man. While crossing the man means यहाँ अगर ये वाला एंड यहाँ पर आता है फर्स्ट वाला, और यहाँ पर आके ऐसा आगे जाके यहाँ पर रुकेगा और लास्ट वाला एंड यहाँ तक आएगा, क्योंकि मैन पहले जब तक क्रॉस करने को बिगिन करेगी ट्रेन यहाँ पर मैन होगा, और जब एंड करेगी तब मैन यहाँ पर होगा। तो क्रॉस करने में जो भी डिस्टेंस है वो ट्रेन के लेंथ के बराबर होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एल। तो अभी इस तीनों में से दो क्वांटिटीज दी होगी और तीसरी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है। कभी कभी क्या दिया होता है, ट्रेन की लेंथ दी जाती है और स्पीड दी जाती है, तो हमें टाइम बताया गया होता है, टाइम निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, टाइम दिया जाता है और उसकी स्पीड दी जाती है, तो हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी होती है। लेंथ का मतलब ही डिस्टेंस होता है। आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पर मैन स्टैंडिंग होता है, वो ट्रेन यहाँ से आती है, तो इस मैन को यहाँ पर क्रॉस करके जाती है, तो क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस लगता है, तो ट्रेन का एल लेंथ के बराबर लगता है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर मैन स्टैंडिंग है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, लेकिन डिस्टेंस क्रॉस नहीं हो रहा है ना। क्रॉस करने में एग्जैक्टली जो भी डिस्टेंस रहता है वो कैलकुलेट दिया होता है, वो लेंथ वाला होता है। सपोज ट्रेन यहाँ पर से स्टार्ट करती है, तो अभी क्रॉस करना शुरू करेगी, अभी ये वाला एंड आगे तक जाएगा और लास्ट वाला एंड यहाँ तक आएगा, तो अभी पूरी की पूरी ट्रेन इस मैन को क्रॉस करके चलेगी, और डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन के लेंथ के बराबर। ये सिर्फ दिस वाले कंडीशन को लागू पड़ता है। टाइप 1 के लिए ये अप्लाई होता है, टाइप 2 के लिए अलग वाला है, वहाँ पर मैन भी यहाँ पर रन कर रहा है। डिस्टेंस और लेंथ वाला जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, टाइम सेम ही रहेगा, लेकिन स्पीड में बदलाव आएगा क्योंकि वहाँ पर मैन भी स्पीड में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब ट्रेन स्टेशनरी मैन को प्लेटफॉर्म में से क्रॉस करती है, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन वाज रनिंग, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस के लिए एल कंसिडर करना है, इतना ही ध्यान में रखना है। स्पीड के लिए जो भी ट्रेन की स्पीड है वो कंसिडर करना है, और टाइम के लिए जो भी टाइम है इतना ही कंसिडर करना है। ओके, एल यू टी, लेंथ ऑफ टाइम इज डिस्टेंस, देन लेंथ ऑफ ट्रेन इज डिस्टेंस, देन टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस इज द टाइम, एंड द थर्ड सिनेरियो इज यूज स्पीड ऑफ द ट्रेन। इतना ही कंसिडर करना है, क्योंकि मैन तो स्पीड में नहीं है और डिस्टेंस तो एल के बराबर है। तो चलिए, ये बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो प्रॉब्लम के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर दिस चैप्टर इज अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 18 seconds. What is the length of the train? And we have to find the length of the train. Option number 1, 200 meters. Option number 2, 250 meters. And option number 3, 325 meters. And option number 4, 280 meters. Please try to concentrate over here. यहाँ पर कैसे कैसे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देना है आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, सबसे पहले वाले स्टेप होते हैं रीड आउट द प्रॉब्लम केयरफुली। प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना होता है, रीड आउट द प्रॉब्लम केयरफुली, रीड आउट द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये टाइप 1 से आता है, लेकिन एग्जाम में आपको बताया नहीं होता कि किसके टाइप से आता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये टाइप 1 से आता है या 2 से। ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। हाँ, एक चीज तो क्लियर होगी कि ट्रेन अभी 56 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करिए, क्रॉसेस अ पोल, यहाँ पर पोल को क्रॉस करिए, चाहे वो पोल हो या आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो स्टेशनरी है। इन 18 सेकंड्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि दो सिचुएशन दी गई, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तीसरी कंडीशन निकालनी है। तो यहाँ पर जो भी गिवन है, स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोज यू कंसिडर करिए 56 किलोमीटर पर आवर, देन यहाँ पर क्या दिया, टाइम रिक्वायर्ड इज 18 सेकंड्स, एंड मीटर में यहाँ पर ट्रेन की लेंथ निकलनी है। तो ये वाला, या तो ये आवर वाला आपको क्या करना है, सेकंड में करना है, या फिर ये सेकंड वाला आवर में करना है, तो कौन सा भी कर सकते हैं आप, दोनों में से दोनों करके देख लेते हैं। 18 सेकंड को आवर में कैसे कंसिडर करेंगे, 18 अपॉन 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों, 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 3600 सेकंड्स, तो 1 सेकंड कितना होगा, x आवर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1 इज इक्वल टू 3600x, तो x मतलब कितना आवर हो गया, 1 अपॉन 3600 आवर हो गया। तो यहाँ पर 18 सेकंड्स है तो 18 आ गया ऊपर। ओके, तो अभी क्या हमारा फॉर्मूला पुट करिए इधर,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फार्मूला आखिर तक याद रखना है, ये चैप्टर जब तक आप खत्म नहीं करते, क्योंकि इस फार्मूले में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सिर्फ ये पता करना है कि स्पीड की जगह क्या रखना है, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या रखना है, टाइम की जगह क्या रखना है। तो स्पीड यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड इज 56 किलोमीटर पर आवर। तो 56 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड लिखते हैं 56। डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कितना होगा, हमने अभी तक पता करा है कि लेंथ विल बी ऑफ डिस्टेंस। ओके, एंड टाइम कितना है, टाइम को कन्वर्ट किया 18 अपॉन 3600। तो अभी इसको लेफ्ट साइड पे लेते 56 इंटू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 18 अपॉन 3600 इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ। अभी 18 1 18, 18 2 36, ये 200 हो गया। ओके, तो अभी लेंथ कितना हो गया 56 अपॉन 200। ये किस में है, किलोमीटर में, लेकिन ट्रेन का लेंथ हमें मीटर में निकालना है। तो मीटर में निकालने के लिए 56 अपॉन 200 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 0, ये 2 कट गए, 2 1 2, 2 5 10। तो 56 इंटू 5 कितना आता है आप देख लीजिएगा, 5 6 30 एंड 5 5 25 प्लस 3 280 मीटर्स आ गया। देख सकते हैं आप कैसे आ गया, 280 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4। अभी दूसरे मेथड से, यानी कि अगर इसको कन्वर्ट नहीं करना है तो ऊपर वाले को कन्वर्ट करके देखते हैं मीटर पर सेकंड में। दूसरी वाली जो सिचुएशन है वो ही इजी पड़ेगी, ये अभी सॉल्व किया और थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि दूसरा इजी है कन्वर्जन में। यू विल बी इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर, यू विल बी इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करने में मीटर पर सेकंड में करना है, तो 56 इंटू किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये आर डिवाइड में है, आवर कितना में डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 3600 में करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। तो ये कितना आएगा, ये 2 0 कट गए, 2 5 10, 2 18 36। 2 से 36 को डिवाइड करोगे तो 18 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। तो आपको पता क्या चल गया, 56 इंटू 5 अपॉन कितना आ गया इधर, 56 इंटू 5 अपॉन 18। तो ये कितना था, किलोमीटर पर आवर में था। और अगर उसको हमने मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ा, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एक चीज़ अभी ट्रिक यहाँ पर मिल गई है, अगर आपको कौन सा भी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में करना हो तो उस स्पीड को हमने 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना है तो मीटर पर सेकंड बनेगा। और इससे उल्टा अगर 1 मीटर पर सेकंड को वो 1 किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर बनेगा। ये बॉक्स आप स्टार करके रखिएगा क्योंकि ये बॉक्स आपको काम आने वाला है पूरी की पूरी चैप्टर में, ये ट्रिक है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5 अपॉन 18 से करना पड़ेगा, और 1 मीटर पर सेकंड को करना है तो 18 अपॉन 5 से करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। तो चलिए इसका क्या मिल गया हमें, तो कैलकुलेट करते, 5 6 30, 5 5 28 प्लस 28 280 अपॉन 18 आ गया। ये क्या हो गया, स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड। तो अभी हमें पता है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना मिला है, 280 अपॉन 18 एंड डिस्टेंस यानी कि लेंथ ट्रेन का जो कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर देख सकते हैं आप 18 सेकंड से एज इट इज 18। तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ इज इक्वल टू 280 अपॉन 80 इंटू 80 आ गया, क्योंकि ये 80 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 80 कैंसिल आउट, 280 मीटर्स। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों मेथड से आंसर सेम ही आए, 280 मीटर्स। प्रॉब्लम बहुत ही ईजी होते हैं, सिर्फ समझ के विजुअलाइज करना पड़ता है आपको, ट्रेन कहाँ से आ रही है, कैसे क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने में लगने वाला डिस्टेंस अगर आपको पता चल गया, या फिर ये याद नहीं रहता तो आप डायरेक्टली फार्मूला याद रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तो एल होता है, एल मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड क्या हमने एज्यूम किया, यू इज इक्वल टू एल अपॉन टी। ये केस 1 वाला फॉर्मूला आप याद रह सकते हैं। अगर आपको याद रहने में दिक्कत है तो आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। किसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, या इस फॉर्मूले में विजुअलाइज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम यहाँ पर देख लेते हैं। द प्रॉब्लम सेज द ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर
it crosses a certain pole that in the way in 9 seconds. Train is running at 60 km per hour. It crosses a certain pole that is, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, that is standing or that is fixed at the platform in the way in 9 seconds. Then what is the length of the train? ओके यहाँ पर क्या दिया है, ट्रेन है, ट्रेन कहाँ से आ रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से आ रही यहाँ पर एक पोल खड़ा है, यहाँ पर समझो एक पोल खड़ा है, ऐसा लाइट का पोल है, तो ट्रेन यहाँ तक आएगी, तो यहाँ से ट्रेन अगर स्टार्ट करेगी तो इसको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस लग जाएगा। सपोज ये वाला एंड है ट्रेन का स्टार्ट वाला, यहाँ से आएगा पहले, तो यहाँ से ऐसे 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 ट्रैवल करके यहाँ आके रुकेगा, तो ये लास्ट वाला एंड कहाँ तक आएगा, इधर आएगा, तो क्रॉस करने में पूरा का पूरा ट्रेन का लेंथ उसमें जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, लेंथ वाला डिस्टेंस हो गया। और टाइम तो दिया है, टाइम इज द फंडामेंटल, तो टाइम में कोई कंफर्मेशन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, और स्पीड दी है, यू मानते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारे दूसरी मेथड से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके, पॉज तो नहीं किया, पॉज करके आप देख सकते हो क्योंकि प्रीमियर वीडियो है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए स्पीड कितना है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम कितना है मीटर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं, 5/18 से हमने देखा था अभी, 5/18, तो यहाँ पर कितना हो गया 300/18 मीटर पर सेकंड। तो चलिए इधर यहाँ पर लिखते हैं 300/18, यहाँ पर कोई काट छाट करने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर डिराइव हो जाता है। स्पीड मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पर टाइम कितना है 9 सेकंड्स, तो लेंथ कितना हो गया देख लीजिएगा, 300 इंटू 9 बन जाएगा, ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 18 एज इट इज, 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2, एंड यहाँ पर आएगा 150 मीटर्स। ओके, लेंथ कितना आ गया 150 मीटर्स। कैसे आ गया आपको विजुअलाइज करना चाह, डी आंसर इज द करेक्ट हेयर। कैसे आ गया आप देख सकते हैं कैसे आ गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ट्रेन रन कर रही थी 60 किलोमीटर पर आवर से, रन कर करके यहाँ पर एक पोल था, उसको क्रॉस करके चली गई, तो ये कितने समय में 9 सेकंड में क्रॉस करके चली गई। क्रॉस मतलब यहाँ का टाइम नहीं, अगर ट्रेन यहाँ पर है, यहाँ पर पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम नहीं दिया है, सिर्फ कौन सा टाइम दिया है, सपोज दिस इज द पोल एंड ट्रेन कम्स ओवर हियर, and when train the first end comes at this location and train crosses and come over here and last end is at the pole, जहाँ तक लास्ट एंड पोल के सामने आता है तब तक क्रॉस करके चली गई, तो उतना लेंथ जब क्रॉस होता है उसका टाइम दिया है, तो लेंथ कितना हो गया डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो टाइम भी दिया है तो स्पीड भी दिया है, तो लेंथ कितनी आ गई हमने देखी डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से 150 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, होप कि आपको प्रॉब्लम समझ आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आया होगा तो आप ये कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको विजुअलाइज करके दिखना है। ट्रेन इज स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म, मैन विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द ट्रेन विद इन 90 सेकंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रेन क्या कर रही है, विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऐसी, ओके। और यहाँ पर एक आदमी ऐसा चल रहा है, सपोज ये लेफ्ट साइड जा रहा है ट्रेन ऐसे, और क्या करता है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अभी आदमी की स्पीड हम यू कंसिडर करते हैं, यू की जे वी की जे कोई डिफरेंस डिफिकल्ट नहीं, लेकिन आगे जाके हम यू वी का देखने वाले हैं कैसे करते हैं। तो सपोज 10 किलोमीटर पर आवर, कितने समय में आदमी इस ट्रेन को क्रॉस करता है 90 सेकंड्स में। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कैलकुलेट। प्रॉब्लम सेम ही, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ट्रेन खड़ी हुई है और आदमी चल रहा है, दोनों में से एक ही यहाँ पर मोशन में। तो ट्रेन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस आदमी क्रॉस करेगा, यहाँ पर आदमी स्टार्ट करेगा, सपोज यहाँ के यहाँ पर खड़ा रहेगा, इधर से स्टार्ट करेगा और यहाँ आके एंड करेगा, तो कितना डिस्टेंस क्रॉस किया आदमी ने, लेंथ वाला ना। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, टाइम इज इक्वल टू 90 सेकंड, और यहाँ पर लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे आएगी, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। सिमिलरली यहाँ पर स्पीड कहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है, तो आप कर सकते हैं u इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 5/18 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर
दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? डायरेक्टली 90 सेकंड को आर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पहले वाला ईजी होगा। 10 × 5/18 करोगे तो आपको मीटर पर सेकंड मिलेगा। कितना हो गया? 20/18 मीटर पर सेकंड। अभी यहाँ पर लिखते हैं 20/80, स्पीड मिल गई। लेंथ तो कैलकुलेट करनी थी, और टाइम कितना है? 90 सेकंड है। 90 सेकंड। अभी ये मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है, तो ऑलरेडी यहाँ पर मीटर में लेंथ निकल जाएगी। तो लेंथ कितनी आ गई? 20/18 इंटू 90। 90 ऊपर जाएगा तो 18 1 = 18, 18 5 = 19। यहाँ पर आएगा कितना आएगा? 20 × 5 100 मीटर्स। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, 100 मीटर्स। एक बार और कैलकुलेट करके देख लेते हमारे प्रॉब्लम में कोई गलती है या नहीं। क्या दिया है हमें? स्पीड दी है u = 10 km/h। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं हम? 10 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको 10 इंटू कितना होगा? 5/18। तो यहाँ पर 15 होगा। ये 15/18 है। गलती से हमने क्या किया था? 20 लिया था, 15 है तो 15/18 लिखते हैं। 15/18 इज इक्वल टू 15/18 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 90। तो 15/18 इंटू 90 इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। 18 1 = 18, 18 5 = 90। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हो गया? 5 5 = 25, ऊपर का 0, तो 250 मीटर्स आ गई। 50 × 5 250 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर इज 250 मीटर्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो होप कि आपको टाइप 1 समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, और उसके ऊपर संभावना कम होती है प्रॉब्लम आने की। इतना ईजी नहीं आता है, लेकिन आपको समझ आना बहुत ही ज़रूरी होता है। समझ आने के लिए मैंने आपको 3 प्रॉब्लम लिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम और प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो चलिए रिवाइज करता हूँ क्या होता है, क्या क्या किया हमने। या तो ट्रेन मोशन में होती है पहले केस में, और मैन यहाँ पर स्टैंड या फिर मैन होता है, या फिर दूसरे सिनेरियो में यहाँ पर पोल भी हो सकता है, लाइट वाला ऐसा। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पर दी होती है, उसका वो आदमी को या फिर इस पोल को क्रॉस करने वाला टाइम भी दिया जाता है, और स्पीड भी दी जाती है। तो एल यू टी के बीच में 2 क्वांटिटी हमें दी गई होती है, और तीसरी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। सपोज स्पीड दी हुई है, टाइम दी है, तो हमें लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है ट्रेन की। अभी हमने की। या फिर एल दिया होता है, यू दिया होता है, तो यू एल दिया होता है, टी दिया होता है, तो यू कैलकुलेट करना पड़ता है। और तीसरा सिनेरियो देखा हमने, ट्रेन यहाँ पर स्टैंडिंग थी और आदमी यहाँ पर चल रहा था। प्रॉब्लम सेम ही है, लेंथ उतनी क्रॉस करने वाली है, लेकिन स्पीड बदल गई। आदमी की स्पीड कंसिडर करनी है, और टाइम भी आदमी को लगने वाला है। तो यू एल टी यहाँ पर भी दिया होता है। बताने का मतलब है कि पहले सिनेरियो में यू एल और टी दिया होता है, आपको यहाँ पर अज्यूम करना, सिर्फ कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है कि इसी टाइप में कंडीशन बैठती है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? या तो ट्रेन मोशन में है और आदमी स्टैंडिंग है, या फिर पोल है, या फिर ट्रेन स्टैंडिंग है और आदमी उसको क्रॉस कर रहा है। इतना ही कंसिडर करना है, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मिलेगा हमें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसके हिसाब से आपको स्पीड और डिस्टेंस टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। u इज इक्वल टू एल अपॉन टी। एल मतलब मीटर या फिर किलोमीटर में होगा, आपको यूनिट कन्वर्जन भी करना है। तो इस जगह पे कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है आपको आनी चाहिए। तो स्पीड की जगह u करो, डिस्टेंस की जगह l, यहाँ पर t करो, तो आपको तीनों में से दोनों वैल्यू दी जाएगी और तीसरी फाइंड आउट करनी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि दूसरा जो यहाँ पर टाइप 2 वाला है उसका ओवरव्यू लेने वाले हैं, और उसके बाद हम आज का लेक्चर यहाँ पर ही खत्म करेंगे, और उसके ये दूसरा वाले के प्रॉब्लम अच्छे से आने वाले लेक्चर में लेंगे। उसके बाद आने वाले प्रॉब्लम्स 4 से 5 लेक्चर में ये हमारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, 4 से 5 लेक्चर में। और एक बार ये मॉड्यूल खत्म हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट वाले हम चैप्टर्स लेने शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में जाने की प्रयास कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको कौन से भी एग्जाम में एप्टीट्यूड आपका समझ आ जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी जो हमने टाइप 1 ले लिया उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, ये क्या है? ये क्या है? टाइप 2, ट्रेन इज क्रॉसिंग द मैन बट बोथ आर इन मोशन। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले सिचुएशन में ओनली ट्रेन वाज मूविंग एंड मैन वाज स्टैंडिंग, और क्या था? मैन वाज मूविंग और ट्रेन वाज स्टैंडिंग। दोनों में से एक ही मोशन में था,
तो इस सिनेरियो में दोनों के दोनों मोशन में है, मैन भी यहाँ पर ऐसे चल रहा है और ट्रेन भी ऐसे चल रही है। लेकिन दूसरा सिचुएशन क्या है, बोथ आर इन द मोशन बट इन सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ये पहला सिचुएशन है। क्योंकि थर्ड वाला सिचुएशन है टाइप 3, उसमें दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एरोज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा क्योंकि एरोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो एक ही यहाँ पर अप्लाई होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड की जगह क्या पुट करना है, डिस्टेंस की जगह क्या पुट करना है, टाइम की जगह क्या पुट करना है, ये आपको अगर जम गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्पीड यहाँ पर कौन सी पकड़ोगे, यू पकड़ोगे या वी पकड़ोगे, विजुअलाइज करिए। फिर ट्रेन जा रही है ऐसे और आदमी उसके आगे दौड़ रहा है, तो आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा ही होनी चाहिए, तब भी आदमी क्रॉस हो सकता है। तो जब ट्रेन यहाँ पर आएगी तब से क्रॉस करने शुरू करेगी और कब खत्म करेगी, जब यहाँ का ट्रेन जो का एंड है वो आदमी के यहाँ पर होगा तो एंड करेगी। तो ट्रेन को आदमी को क्रॉस करने के लिए जितना भी टाइम दिया होगा वो यहाँ पर टी मानते हैं। ट्रेन का स्पीड यू और आदमी का स्पीड है वी। तो आदमी भी उसको अपोज कर रहा है, क्रॉस करने में सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आदमी उसके डायरेक्शन में भाग रहा है ऐसे। तो उसको ट्रेन को अगर क्रॉस करना है, आदमी वी स्पीड में आदमी भाग रहा है, तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोर से भागना पड़ेगा और v को रेजिस्ट करना पड़ेगा u के हिसाब से। तो u मस्ट बी ग्रेटर देन v, u मस्ट बी ग्रेटर देन v। तो रिलेटिव स्पीड हमें कंसिडर करनी है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, u माइनस वी, मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है u माइनस वी। तो स्पीड की जगह क्या रखोगे, u माइनस वी पुट करना है इधर। डिस्टेंस एज इट इज, ओनली ट्रेन का ही डिस्टेंस है, यहाँ पर मैन का तो कोई पॉइंट में होता है डिस्टेंस, मैन का एज्यूम नहीं किया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, l हो गया। तो एल ही यहाँ पर डिस्टेंस की जगह एल ही करना है, टाइम की जगह टी करना है। ओनली डिफरेंस इज दैट स्पीड की जगह यू माइनस वी करना है क्योंकि बोथ आर इन मोशन है। यू बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, वी बी द स्पीड ऑफ मैन, सो द रिलेटिव स्पीड इज यू माइनस वी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, ट्रेन इज क्रॉसिंग द मैन एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे एरो रहते, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई यू माइनस वी। स्पीड की जगह यू माइनस वी पुट करना है क्योंकि उसकी स्पीड जीरो नहीं है ना, वी है, तो उसको रजिस्ट करने में स्पीड जाएगी, तो एक्चुअल स्पीड बनेगी यू माइनस वी। तो यू माइनस वी कैलकुलेट करके कैसे करते हैं, चलिए हम नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, एक वाला प्रॉब्लम देखते हैं और हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। ट्रेन इज मूविंग। सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जब प्रॉब्लम पढ़ता हूँ तो कॉन्सेंट्रेट करके लिसन करना है, प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट समझना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा समझना है कि ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया है और आपको यहाँ पर बताया नहीं कि कौन से टाइप में आता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका टाइप कौन सा है और उसके बाद उसका फॉर्मूला और उसका कैलकुलेशन। प्रॉब्लम समझ आता है, उसका कंसेप्ट समझ आता है, उसका टाइप समझ आता है, उसमें 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर उसका फॉर्मूला आना ये 30% होता है और उसको सॉल्व करना ये होता है 20%। ये होता है मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। आप क्या करते हो कि यहाँ पर हर रश में क्या करते हो, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे गड़बड़ी में यहाँ पर रेड करते हो, तो उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना होती है। तो इसलिए पहले अच्छे से समझना है प्रॉब्लम को, उसको रीड आउट करना है, उसका रिक्वायरमेंट, उसका फॉर्मूला, ये सभी चीजें करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ द ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड, यहाँ पर यू कितना है, यू इज द स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड कितनी है, वी कंसिडर करते 5 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव स्पीड यू माइनस वी, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड टाइम कितना है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द मैन फॉर द ट्रेन इज 15 सेकंड्स। तो फॉर्मूला तो सेम है, अभी क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह u माइनस वी आएगा यानी कि 45 आएगा और इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेकंड में है। कैसे करेंगे, 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस का मतलब लेंथ अपॉन टाइम। टाइम कितना होगा 15 सेकंड्स, लेंथ विल बी इक्वल टू 45 इंटू 5 इंटू 15/18। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 3 से यहाँ पर डिवाइड होता है 3 6 18 एंड 3 इंटू 15 यहाँ 45 आएगा। तो ऊपर वाले का सभी मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा, 225 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। और अभी क्या आएगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10
प्लस 2 12 कैरी 1, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 अपॉन 6। तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिला, 6 1 ज़ा 6, देन 6 80 ज़ा 48, देन 6 यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इसे, 6 से डिवाइड करते 6 1 ज़ा 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 5, यहाँ पर कितने से 680, 6 8 ज़ा 48 आएगा। यहाँ पर क्या बचा 4, और यहाँ पर क्या आएगा अभी 4 और 5 बच गया, 6 7 ज़ा 42, यहाँ पर बचेगा 3। अभी पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पॉइंट क्यों लगाते हैं, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन के चैप्टर में देखा है। तो 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पर क्या आएगा 187.5 मीटर्स, 187.5 मीटर्स। प्रॉब्लम सेम ही है, कैलकुलेशन सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ u माइनस वी पुट करना है। इस सिनेरियो में आपको सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है। तो इसके हम बहुत प्रॉब्लम लेने वाले। तो समराइज करते हैं आज क्या क्या सीखा हमने। ट्रेन वॉज क्रॉसिंग द मैन, उसका फॉर्मूला था u इज इक्वल टू एल अपॉन टी, एंड व्हेन ट्रेन एंड मैन बोथ आर इन द मोशन बट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ u एंड v रिस्पेक्टिवली, तो u माइनस वी रहना पड़ता है इज इक्वल टू एल अपॉन टाइम। उसमें से 1 2 3 1 2 3 3 में से 2 क्वांटिटीज दी होती है, कौन सी भी 2, और थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। और उस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसमें हमें लिखना है स्पीड की जगह u माइनस वी। पहला सिनेरियो है तो u डिस्टेंस की जगह l, t की जगह टाइम, एंड दूसरा सिनेरियो है तो u माइनस वी डिस्टेंस की जगह l, टाइम की जगह t लिखना है। ओके, होप today's lecture will be helpful for you. Please, you haven't subscribed to the channel, please subscribe to channel, please like the video and share among your friends, and please attend it the last number, last 10, because this is the most important series taken by Sri Tulsa Bhavani College of Engineering, Tulsapur, in association with the Tulsai Career Academy, Tulsapur, TCA, Tulsai Career Academy, Tulsapur, TCA. So please do subscribe and attend the lectures regularly. Thank you.